Good afternoon, students. Welcome back to today's class. Today we are going to learn about multiplication of algebraic expressions. In the previous class, we learned about addition and subtraction of algebraic expressions, addition of monomials, addition of binomials, addition of trinomials, whatever may be the number of terms present in the algebraic expressions, but the procedure remained same. In the addition and subtraction, we had seen about column method and the horizontal method. Now here also we have the same type of methods, but we'll focus actually how the terms are multiplied with one another. Let us focus on these topics. There are many headings mentioned in the textbooks, but I have summed up and written in two categories: monomial, binomial, means multiplication of monomial by monomial, multiplication of monomial by binomial, multiplication of monomial by polynomial. So yesterday I explained about the types of polynomials also. One term monomial, two terms binomial, three terms trinomial, like that. But even one term also it is called as polynomial. How to multiply the terms, algebraic expressions? For example, I am taking example number 1. It's there in your textbook also. Multiply 5p and 4q. Multiply 5p and 4q. In addition and subtraction, I told you one thing. If you want to do addition of algebraic expressions, I told you about a condition. What is the condition? Two conditions I told. One condition is power of variable should be same. Second condition I told you, that is variable should be same. Variable should also be same. These are the two conditions I told. टू एक्सप्रेशंस को ऐड करना है या टू टर्म्स को ऐड करना है या वेरिएबल्स को, दोनों वेरिएबल्स का पावर सेम होना चाहिए, पावर 1 2 जो भी है सेम, एंड वेरिएबल भी सेम होना चाहिए. एक्स और एक्स को ऐड कर सकते हैं, वाई और वाई को ऐड कर सकते हैं. एक्स और ए को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट कैटेगरीज, different quantities. Now here we want to multiply 5p into, multiplication means into symbol, and 4q. So what happens in the product? Product में क्या होता है? Simple. न्यूमरल वैल्यूज को, नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल्स को सेपरेटली. फर्स्ट यू राइट लाइक दिस 5 into 4 into p into q. 5 4s are 20 into, अब p और q यहाँ पर ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स. सो इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके हम कैसे लिखेंगे? p और q, दैट्स इट. वेरिएबल मतलब p कुछ भी वैल्यू हो सकता है और q भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है. इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है वो भी प्रोडक्ट है. सो यदि p आपने 2 लिया, q 3 लिया है तो 2 into 3 हो जाएगा. सो इट इज़ ए प्रोडक्ट. सिंपली यू कैन राइट इट एज 20 pq. सो ऐसा लिखे बिना भी आप सॉल्व कर सकते डायरेक्टली. 5 4s are 20 and p into q, pq, right? So let me take another example. It is 2a multiply 2a 6b and 5c. इन तीनों को मल्टीप्लाई करना. सो एज यूजुअल विल राइट इट इन अ प्रॉपर ऑर्डर. 2a into 6b into 5c. अब पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, या यदि आप कंफ्यूज होते हो एक साथ लिख दो. 2 6 5 इंटू देन ए बी सी. ओके, नाउ 2 6 आर 12, 12 5 आर 60 और ए बी सी ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स. सो इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे ए बी सी. ओके, राइट. सो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल. आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. 4pq into 3p power 4. Now see here, first we'll write in order 4 into 3 into p cube into p power 4. 4 3s are 12, that's for sure, and you know it. Now what about these two? Here the variable is same. So you need to remember the concept that we learned in the लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में एक लॉ को हमने देखा है,
ए पावर m इंटू ए पावर n, दोनों का पावर सेम, बेस सेम है, तो पावर्स को हम क्या करते हैं? टेल मी व्हाट डू वी डू? वी ऐड द पावर्स. सो सेम यहाँ पर p और p दोनों का बेस सेम है, तो से कॉमन बेस लेते हैं और पावर्स को ऐड करते हैं, 3 + 4. नाउ नेक्स्ट 12 इंटू p पावर 3 + 7, 3 + 4 7. So this is the answer. I hope you understand it now. We multiply the numbers and we also multiply the base. If the base is same, we take a simple common base and powers को ऐड कर देते हैं. यदि बेस अलग अलग है तो हम एक साथ लिख देते हैं. Right. So this is about the multiplication. Let me take one more example. That is a cube b cube into a पावर 4 b पावर 2. अब इन दोनों में हमें सेम वेरिएबल दिखाई दे रहा है. सो फर्स्ट यू राइट देम टुगेदर, ए क्यूब इंटू ए पावर 4. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी लर्न किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या लर्न किया? वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स. वी कैन राइट चेंज द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स. दैट इज पॉसिबल इन द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में पॉसिबल नहीं होता है. b cube into b square. So now here base is same, here also base is same, so we take common base for these two and powers are added just like this law, into b power 3 plus 2. So ultimate answer is a power 7 into b power 7. अब यहाँ पर सॉरी ये b power 5 है. So that's it. This is the answer. So in all these 4 examples, what I try to explain is multiplication of monomial by a monomial and multiplication of binomials. So this is all multiplication of monomials only. All these are multiplications of monomials only. Let me take example of binomials. Multiplication of binomials. For example, multiply monomial. I'm taking 3a comma ये 3a मोनोमियल है और बाइनोमियल मैं ले रहा हूँ 3a plus 4b. So this is binomial because it is having 2 terms. How do we multiply? 3a into 3a plus 4b. I hope you remember the associative property, sorry distributive property. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. पहले इस टर्म को इंडिविजुअल एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. 3a इंटू 3a प्लस 3a इंटू 4b. आई होप यू अंडरस्टैंड. 3a इंटू 3a प्लस 3a इंटू 4b. ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसको ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म से हमें इंडिविजुअल अलग अलग से मल्टीप्लाई करना है. अब 3 3 ज़ा 9, a इंटू ए पावर 1 ए पावर 1 पावर्स ऐड हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12 a इंटू बी ए बी. सो दिस इज सिंपली 9 a स्क्वायर प्लस 12 ए बी. दिस इज द आंसर. सिंपल मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल बाई बाइनोमियल. सो मान लो यहाँ पर एक और टर्म ऐड किया होता तो सेम प्रोसीजर. यहाँ पे 2 टर्म्स आए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद. यदि यहाँ 3 होता तो यहाँ पर भी 3 टर्म्स आ जाते हैं. सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई दी algebraic expressions, monomial by monomial, monomial by binomial और monomial by polynomial. ये monomial है और ये polynomial है, ये भी polynomial है. So multiplication of polynomials. Now the second topic is multiplication of polynomials. Polynomials को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? Let me take one example. 3x minus 4y into 4x प्लस 3y. अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें निकालना है. सो फर्स्ट एज ए सेड इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इस टर्म को लेके इस ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं. फिर इस टर्म को लेकर ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट आई टेक 3x इंटू 3x इंटू एंड देन दिस 3x इंटू 4x. उसके बाद ये पॉजिटिव 3x और ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस इंटू प्लस इज प्लस ओनली. सो प्लस
3x इंटू 3y, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का। अब 3x को लेकर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 3x का काम खत्म। अब -4y लेते हैं, -4y को लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -4y इंटू 4x, माइनस इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, अगेन -4y इंटू 3y। समझ में आ रहा है आपको? 3x इंटू 4x, 3x इंटू 3y, 4y इंटू 4x, 4y इंटू 3y। सो वी आर मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है। अब 3x इंटू 4x, 3 इंटू 4 इज 12, x इंटू x, x पावर 1, x पावर 1, x पावर 2, प्लस 3 इंटू 3 9, x इंटू y, एक्स वाई ओनली। उसके बाद 4 इंटू 4 16, x इंटू y, एक्स वाई, माइनस 4 इंटू 3 12, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, ये दोनों हो गया, बचा क्या, प्लस 9xy माइनस 16xy। अब देखो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का वेरिएबल्स अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये दोनों लाइक टर्म्स, क्योंकि वेरिएबल सेम है, एक्स वाई, पावर्स भी सेम है, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1। सो इन दोनों के बीच में हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हाउ डू वी डू द सब्ट्रैक्शन? वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर इज 9, सो 16 में से 9 को माइनस करते हैं, वी गेट 7। सो वी राइट हियर 12x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, देन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ गया है 7xy। लेकिन ये जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बिगर नंबर का जो भी साइन रहता है उसको हम लिख देते हैं, बिगर नंबर इज 16 और उसका साइन है माइनस। सो दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हाउ डिड वी मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाइंग ईच टर्म विथ ईच अदर टर्म, इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन। 3x को 4x के साथ, 3y के साथ, 4y को 4x के साथ, 3y के साथ, चाहे यहाँ पर टर्म्स कितने भी क्यों ना हो, पावर वाले टर्म्स भी क्यों ना हो, प्रोसीजर रिमाइंड सेम। सो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। अब कॉलम मेथड को अब तो आप जानते ही हैं। हाउ डू वी डू दैट? सपोज 3x प्लस 4y को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 2x से। सो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट 2 इंटू एक्स इंटू 2x इंटू 3x, 6x स्क्वायर आएगा, यह हो गया, प्लस 2 इंटू 4 8, x इंटू वाई, एक्स वाई, दैट्स इट। तो इसी तरह हमें ये मल्टीप्लाई करना है। सो देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स गिवन इन द एक्सरसाइज। इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। इफ़ यू गेट doubts anywhere, you just rewind, go back and then watch it again. Definitely you will understand. If you still don't understand, you can write back to me. I can give you clarifications and go through the other examples, solve the exercise questions, and we'll meet tomorrow again. Thank you.